Hello students, I welcome you all on this channel. If you're new here and you haven't subscribed to this channel yet, then you can do it really easily by just clicking on the subscribe button and hitting the bell notification icon so that you never miss an important update regarding any of the videos. So students, let us quickly begin with the video जिसमें I will be discussing MEG 04 aspects of language के most important short notes. So this video is going to be a very important one for all of you, as this will clarify all your doubts regarding what kind of short notes are asked in IGNOU examination. And also this video is in the continuation of my previous video जिसमें मैंने डिस्कस किए हैं most important and frequently asked questions from MEG 04 aspects of language. So that video is also very important and will help you a lot in your exam preparation कि कैसे कैसे questions MEG 4 से पूछे जाते हैं IGNOU examination में. I have also mentioned the links in the description box as well as in the comment section below. So students, as per IGNOU examination pattern, MEG 04 aspects of language का first question हमेशा short note ही होता है. That is why you really have to prepare these short notes very well so that you can score good marks. Plus short notes काफ़ी scoring भी होते हैं, तो इसलिए इनकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है. सो लेट अस सी दैट व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड शॉर्ट नोट्स एंड व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. सो द फर्स्ट वन इज़ Latin borrowings in English. So Latin borrowings in English is a topic that is taken from block 2, that is history of English language. So इस block में हम पढ़ते हैं that how English as a language is borrowed from various languages. That means how English is borrowed from Latin. So इस short note में basically हमें exam में ये लिखना है that how English as a language has evolved from Latin language, and we also have to give examples to support our answer because that will make our answer really scoring. And plus short notes काफ़ी scoring है. If you score good marks in short notes तो आपका overall marks and overall percentage में भी आपको इसका effect दिख सकता है. So next short note की बात करते हैं. So next one is cardinal vowels. कई previous papers में लगातार cardinal vowels वाला short note पूछा जाता है. So basically इस short note में आपको इस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करना है जिसमें आप स्टेट करेंगे दैट व्हाट आर वॉवल्स, उनके टाइप्स, एंड स्पेसिफिकली यू विल राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कार्डिनल वॉवल्स, दैट ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कार्डिनल वॉवल्स. सो उस सब के बारे में यू हैव टू राइट इन दिस शॉर्ट नोट. नाउ नेक्स्ट वन इज़ एनाफोरा. सो एनाफोरा वाला शॉर्ट नोट आपको जो हमारा ब्लॉक 5 है दैट इज़ इंग्लिश सिंटैक्स, उसका एक सब पार्ट है. सो उसमें जो हमारा एक जो सब टॉपिक है प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड अदर बाउंड एलिमेंट्स, उसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा. सो बेसिकली इसमें हमें बताना है दैट व्हाट इज़ एन एनाफोरा and what are the examples of anaphora. तो उस तरीके से you have to build up your short note. Now next short note which is also very important is origins of language. Very very important short note because ये हमारा block 1 that is what is language वाले block में से ही है. So first block है, काफ़ी easy block भी है, इसमें हम language के बारे में पढ़ते हैं. And origins of language is basically योर कॉन्सेप्ट जिसमें हम पढ़ते हैं दैट हाउ लैंग्वेज हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स एंड व्हाट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई. इसमें वी विल हैव टू स्पेसिफाई ऑल द theories, that is the divine source theory, the poof poof theory, the ding dong theory, all these theories, the natural sound theory. So इन सब के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा और उसके बाद इनको इलेबोरेटली आपको उसका आंसर फ्रेम करके
अपने एग्जामिनेशन में लिखना होगा. Now next important short note is diphthongs of English. It is also a very important short notes because diphthongs, we know that diphthongs are the types of vowels. Vowels are classified into two types, that is monophthongs and diphthongs. So diphthongs के बारे में भी हमें इनकी पहले definition लिखनी है, that what are the diphthongs, उनके कितने types हैं, and what are the examples of diphthongs. इसमें we can state that how diphthongs are also known as gliding vowels. So इन सब के बारे में we have to write in the answer. Now next is back formation. So back formation is in the topic जो हमने word formation वाला पढ़ा था, उसमें one of the type of word formation is back formation. So उसके बारे में we have to write that how words are formed through this process of back formation. Now next is affixes, stems and roots. So this is also one of an important short note. जो morphology वाला हमारा टॉपिक है, जो हमारा ब्लॉक है, उसमें से हमें ये मिलना है और वो हम वहाँ से प्रिपेयर करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो एफिक्सेस में आती हैं. फिर हम लिखेंगे डेप्थ में दैट व्हाट आर प्रीफिक्सेस, व्हाट आर सफिक्सेस, स्टेम्स एंड रूट्स, इन सब के बारे में हम बताएंगे एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स. सो बेसिकली हमें इनको डिफ़ाइन करना है और इन तीनों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताना है. So that will complete our entire short note and the whole marking scheme. Now next short note is clipping as morphological device. So ये भी हमारा एक word formation वाला topic में से ही आ जाता है, that how are words formed. So back formation, clipping, so basically it is from the same topic, so वहाँ से you can prepare. Now next is the कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. सो दिस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट जो कि एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल वाला है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द टॉपिक लैंग्वेज प्लानिंग. इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट, बट हाँ ये कई बार मतलब पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में. नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोनोमिनल्स. ये वाला टॉपिक भी आपको, जो कि हमारा सिंटैक्स वाला ब्लॉक है, प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड अदर एलिमेंट्स का ही एक बहुत छोटा सा टॉपिक है. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ये भी एक बार इग्नू एग्जामिनेशन में पूछा गया था. नाउ नेक्स्ट इज़ फोरग्राउंडिंग थ्रू पैरेललिज्म. सो येस, दिस इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज फोरग्राउंडिंग एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि लास्ट ब्लॉक है स्टाइलिस्टिक्स. सो बेसिकली फोरग्राउंडिंग थ्रू पैरेललिज्म, बिकॉज फोरग्राउंडिंग के 2 टाइप्स हैं, पैरेललिज्म एंड डेरिवेशन. सो बेसिकली हमें इस पूरे प्रोसेस को बताना है, इस स्टाइलिस्टिक डिवाइस को बताना है, दैट हाउ फोरग्राउंडिंग हैपन्स थ्रू पैरेललिज्म. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉर्ट नोट, that is Indian English. So this is also one of the important question or short note जो काफ़ी बार इग्नू एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. So basically Indian English में हमें ये लिखना है that how Indian English is different from British English and how it has evolved from British English. So we have to state the writers who are the Indian English writers who have written in English language. And basically ये जो हमारा second last block है, that is block 8, the spread of English, उसका एक काफ़ी important topic है. So you can prepare it from that and you can also read the Indianness in English. So you can also mention few lines from that topic as well. Now next is French borrowings in English language. So French borrowings का मैंने पहले भी बताया था, Latin borrowings का भी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था. That borrowings as such is a very important topic जो कि काफ़ी बार इग्नू एग्जाम में पूछा जाता है. So basically we have to say and write that how English as a language has evolved from French language. What are the French words that we use in English language? और कुछ examples के साथ हमें इस short note को लिखना है. Now next is blending. So blending is one of the type of the word formation. So word formation की technique है. काफ़ी पहली बार भी मैंने दूसरा जो मैंने क्वेश्चन बताया था वर्ड फॉर्मेशन की टेक्निक्स का, तब भी मैंने ये डिस्कस किया था. सो बेसिकली दिस इज अ सब टॉपिक ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन वाला चैप्टर. नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेशनल अफिक्सेस. सो बेसिकली ये टॉपिक हमें मॉर्फोलॉजी वाले
जो हमारा यूनिट है उसमें हमें मिलेगा दैट व्हाट आर डेरिवेशनल एफिक्सेस, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज इन्फ्लेक्शुअल मॉर्फोलॉजी, डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, उसका एक सब पार्ट है. सो इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये है कि मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर में से ये एक सब टॉपिक है. नाउ नेक्स्ट वन इज पिजन्स एंड क्रियोल्स. सो ये टॉपिक भी हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पिजन्स एंड क्रियोल्स में से भी काफ़ी बार इग्नू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो बेसिकली यू हैव टू डिफाइन व्हाट आर पिजन्स एंड व्हाट आर क्रियोल्स. सो बेसिकली एक सिंबल लैंग्वेज और कोड लैंग्वेज है जो कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ कन्वर्स करने में यूज़ करती है बिकॉज मदर टंग सब सारी कम्युनिटीज़ की सेम नहीं है. So they need a symbol or a code language to communicate with each other. So उसी के बारे में we have to write in this pigeons and creoles वाला short note. Now next short note is style and content. So style and content is one of the important short note जो कि हमारा ये जो last block है stylistics block number 9 उसका एक बहुत important part है. So इसमें भी हमें we have to define what is style and what is content, what is the relationship between style and content. Now next is bilingualism. So bilingualism is one of the most or extremely important short note. So इसमें हमें define करना है that what is bilingualism, how it is different from multilingualism also and monolingualism also, what are the types of bilingualism, or who are the persons who are termed as bilinguals. जो लोग एक या दो से ज्यादा भाषाएं जानते हैं उनको हम बाइलिंगुअल्स बोलते हैं. सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीलिंगुअलिज्म, दैट मीन्स मल्टीलिंगुअल्स हम उन्हें बोलते हैं जिनको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं. सो वी हैव टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिस concept with the other concepts. So next is competence and performance. So this is actually a principle or a concept which is given by Noam Chomsky. उसके बारे में हमें पहले बताना है कि कैसे कैसे उन्होंने उनका एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल रहा है. उनके जो जनरेटिव ग्रामर की उन्होंने थियोरीज दी हुई हैं उसके बारे में वी हैव टू डिफाइन एंड राइट एन इंट्रोडक्शन. सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट एक तरह से हो ही जाता है. Now next is language planning. Language planning is one of the most, or it can be said one of the most vast topics from the entire aspects of language. So इसमें हमें planning के बारे में हम पढ़ते हैं कि what is language planning, उसकी definition, उसके types. There are multiple language planning के types: status planning, corpus planning, intensive, extensive, micro, macro. उन सभी के बारे में we have to elaborate. We also have to state what are the limitations of language planning, कौन कौन से factors हैं that determines the language planning. So उसको हम basically उसका brief सबके हम introduction और उसके बारे में लिखेंगे because it's a short note. ये काफ़ी बार 20 marks जो कि lengthy questions में से पूछा जाता है ये वो उसमें भी आ जाता है कई बार. Now next is ethnography of communication. So ethnography of communication ये वाला हमारा टॉपिक आता है सोशो लिंग्विस्टिक्स वाला जो हमारा ब्लॉक है उसमें से. सो बेसिकली डिफरेंट मोड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें से एक एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन भी है. तो उसके बारे में वी हैव टू स्टेट दैट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशो लिंग्विस्टिक्स. इट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम डायलेक्टोलॉजी एंड ऑल्सो सोशोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ दैट. सो इसमें वी हैव टू राइट दैट व्हाट आर द एथनिक ग्रुप्स की जो एक कम्युनिकेशन होती है तो उसके बारे में वी हैव टू इलैबोरेट हियर. Now next is code switching. So code switching and code mixing is also one of the most important short notes जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं. जब हम टू लैंग्वेजेस को स्विच करते हैं दैट मीन्स जब हम लैंग्वेज 1 दैट इज L1 में अगर सपोज हमारी हिंदी है उसको हम कैसे इंग्लिश में या पंजाबी में या तेलुगु में या किसी और लैंग्वेज में हम उसको स्विच करते हैं तो बेसिकली उसे हम स्विचिंग कहते हैं. सो इसमें आप एक्चुअली एग्जाम्पल्स देके अपना जो शॉर्ट नोट है वो लिखेंगे. नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. सो क्लॉजेस वाला जो हमारा चैप्टर है दैट इज ऑल्सो देयर इन दी सिंटैक्स वाला जो हमारा ब्लॉक है दैट इज ब्लॉक 5 आई थिंक.
उसमें से ये वाला आपको प्रिपेयर करना है, that what are finite and non-finite verbs. So basically these are the two types of clauses. So first you have to define that what is a clause, and then you have to state that what are finite clauses or verbs or non-finite clauses, and we have to state the difference between these two. Next is Safir and Whorf hypothesis. So this is block 1, जो कि हमें what is language वाले में हमारा जो last chapter है, that is language and thought, उसका काफी important section है. So basically this is a hypothesis given by Edward Safir and Benjamin Whorf. तो इनका पूरा जो कि उन्होंने hypothesis निकाला था regarding the language and the thought and the perception of reality, उस सबको हमें define करना है, and we have to state the principles of or the two aspects of linguistic relativism and also linguistic determinism. तो उस सारे process में से हमें ये वाला short note समझाना पड़ेगा. So next is negation. So this subtopic is actually from block 5, that is syntax. उसमें जो कि एक सब पोर्शन है और सब टॉपिक है, दैट इज एडवर्ब्स, क्वांटिफायर्स एंड नेगेशन. उसका ये एक सब टॉपिक है. तो उस सब टॉपिक में से हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा, वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज नेगेशन, एंड वी आल्सो हैव टू राइट दैट हाउ नेगेशन as a logical operator and what are the two types of negation in English, उस सब के बारे में we have to comment in this particular short note. Now next is language and style. This is from the last block, that is stylistics. तो हमें इसमें relationship बताना है that what is language, what is style and what is the relationship between style and language. Now next is inflectional morphology. सो हमारा जो ये वाला ब्लॉक है मॉर्फोलॉजी वाला, उसमें से ही इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी. सो हमारे टू टाइप्स होते हैं, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल. सो वो उन दोनों के बारे में भी वी हैव टू मेंशन एंड स्टेट, बट हमें इलैबोरेट इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी को करना पड़ेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉर्ट नोट, दैट इज foregrounding. So foregrounding is a very important subtopic of stylistics. सो स्टाइलिस्टिक्स वाला जो हमारा लास्ट ब्लॉक है, उसमें हम पढ़ते हैं फोरग्राउंडिंग के बारे में, दैट हाउ इट इज अ स्टाइलिस्टिक इफेक्ट, एंड इसके टाइप्स के बारे में हमें बताना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है. सो इस तरीके से वी विल अप्रोच दिस पर्टिकुलर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज अमेरिकन इंग्लिश. जैसे हमने स्प्रेड ऑफ इंग्लिश में इंडियन इंग्लिश का पढ़ा था, उसी हिसाब से हम अमेरिकन इंग्लिश के बारे में भी हम बताएंगे, दैट हाउ American English is different from British English and also Indian English. What are the characteristic features of American English? Next, हमारे पास है vowels of English. So vowels of English में हमें बताना है that what are vowels first of all. Then we have to define the types, that is monophthongs, diphthongs. What are the examples of vowels? सो उसी के बारे में वी हैव टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट. नेक्स्ट हम बताते हैं वर्ड स्ट्रेस इन इंग्लिश. सो वर्ड स्ट्रेस इन इंग्लिश ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, काफी बार पूछा गया है. सो जो हमारा ये वाला टॉपिक है स्ट्रेस एंड रिदम वाला, जो हमारा चैप्टर है, उसमें से हमें सबसे पहले बताना है दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ it is different from rhythm, and the differences and the similarities and the relationship between word stress, intonation, rhythm. So all these things has to be covered here. So basically जो हमारा block 3 है phonetics and phonology वाला, उसमें से we will prepare this particular short note. Next is Indianness in English. So Indianness in English and Indian language जो हमने पहले भी शॉर्ट नोट कवर किया है, दैट इज व्हाट इज द इंडियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश. सो बेसिकली इंडियननेस इंग्लिश में भी हम यही बताएंगे दैट हाउ द इंडियन लैंग्वेज, व्हाई वी कॉल इट एज इंडियननेस इन इंग्लिश. सो हम राइटर्स के बारे में बताएंगे यहाँ पर, दैट व्हाट आर द इंडियन राइटर्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट from the British writers and American writers, and what are the characteristics of the Indian English.
सो उन सभी चीजों के बारे में हम इस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट में कवर करेंगे. नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड एंड एज एज लर्नर फैक्टर्स इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. सो हमारे पास काफी सारे फैक्टर्स हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो उसमें से हम बेसिकली बताएंगे दैट हाउ एज एंड एप्टीट्यूड सर्व एज अ लर्नर फैक्टर इन द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कि कैसे हमारी जो एज है और किसी इंसान का एप्टीट्यूड उसको अफेक्ट करता है टू एक्वायर द सेकेंड लैंग्वेज. जब हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं सो उसमें एज का और एप्टीट्यूड का क्या रोल रहता है. सो बेसिकली दैट वी हैव टू लिस्ट इन दिस पर्टिकुलर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज डायलेक्ट एंड रजिस्टर. सो डायलेक्ट एंड रजिस्टर ये काफी छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये है कि इसमें आपको थोड़ा इलेबोरेट इस तरीके से आप कर सकते हैं दैट पहले तो सबसे पहले हम बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे दैट व्हाट इज अ डायलेक्ट, व्हाट इज अ रजिस्टर, और हम लैंग्वेज में इनको कैसे हम इनको यूज करते हैं, और डायलेक्टोलॉजी के बारे में वी कैन स्टेट एंड रीजनल डायलेक्ट्स के बारे में वी कैन राइट. सो इस तरीके से वी विल मेक अप दिस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट. नेक्स्ट इज कोड मिक्सिंग. सो पहले भी मैंने ये बताया है दैट कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग ये दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं. जैसे हम दो लैंग्वेजेस को L1 एंड L2 दैट इज लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 को जैसे हम मिक्स करते हैं, कभी कभी हम जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी को भी मिक्स करके एक नई लैंग्वेज में बात करते हैं या लिखते हैं, सो उसको हम कोड मिक्सिंग कहते हैं. सो ये भी हम एग्जाम्पल्स के टाइप में हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. सो वी हैव टू राइट एग्जाम्पल्स इन दिस कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग वाला शॉर्ट नोट. नेक्स्ट इज आवर स्पीच कम्युनिटी. सो इस स्पीच कम्युनिटी वाला जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है. इसमें वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज अ स्पीच कम्युनिटी. सो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम लैंग्वेज और द सेम कल्चर एंड द सेम लैंग्वेज, जो कि जिनका होता है, सो उनको एक स्पीच कम्युनिटी की टर्म में हम डिफाइन करते हैं. सो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में वी हैव टू राइट एंड वी ऑल्सो हैव टू स्टेट अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म. वी ऑल्सो हैव टू स्टेट द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद स्पीच कम्युनिटी. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश. सो हमारा जो ये ब्लॉक सेकंड है दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें हम शुरुआत में ही पढ़ते हैं the categories and the age of English language. That means how English as a language is classified into three categories, that is Old English, Middle English and also Modern English. So इसमें जो भी सारे characteristic features हमारी English, Old English में बनते हैं, उसी steps को और उन्हीं characteristics को हमें अपने इस आंसर में define करना है और लिखना है. So basically we have to state that what are the words which are still prevalent in today's modern English also, and जो हम कैसे कैसे define करते हैं Old English, Middle English and Modern English, what are the characteristics of different classification of Englishes. So उसी के तरीके से हमें यहाँ पर बताना है that how Old English is formed and what are the different time periods of these Old English, Middle English and Modern English. Last one is status planning. So it is also a type of language planning. So basically language planning भी हम बहुत अच्छे से ये topic prepare कर जाएंगे exam के लिए, because not only status planning, बहुत कुछ और जो types of language planning है वो भी exam में पूछे जा सकते हैं, like corpus planning, micro planning, macro planning, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कितने सारे टाइप्स हैं हमारी लैंग्वेज प्लानिंग के. सो उस प्लानिंग को हम स्टेटस प्लानिंग कैसे डिफरेंट है सारी प्लानिंग्स में से, उसको हम लिखेंगे. और ऑब्वियसली वी विल राइट द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेटस प्लानिंग, दैट हाउ दिस इज अ प्लानिंग which involves planning of the particular status or the designation of the language in a particular region or a country. So इसी तरीके से
हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेपिटेटिव हैं, काफी बार इग्नू एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सो डू these short notes and prepare them very well so that you can score really good marks in your MEG 4 examination. So all the very best to you for your exam. So this brings to the end of today's video. If you liked it and found it helpful, then do give it a big thumbs up, subscribe to this channel, share it around. If you have doubts, you can also comment below. And guys, do support this channel. All the very best to you and thanks for watching.